Today we are going to start with exercise 7.11 of chapter number 7 integrals class 12. Correct? See, what I am going to do today is I am not going to solve each and every problem for you, but I will give you some hints that this is how we should approach. So let's start with the question number 1. What do we have? It says integral 0 to pi by 2 cos square x dx. Now you can do two ways. What you can do is you can simply write this as 1 plus cos 2x by 2 and then you can substitute the limit and get the answer. Or you can do something like this also. Can I say this is my integral I, and by using the property, can I replace cos square x as cos square pi by 2 minus x dx? How I can write like this? Because we understood the we understood the property 0 to a f of x dx is equals to integral 0 to a f of a minus x dx, कुछ इस तरह से. Correct? So this is how it can be created, and this will become 0 to pi by 2 cos pi by 2 minus x will become sin square x dx. Let me call it equation number 1, equation number 2. So adding 1 and 2, I will get 2i equals to integral 0 to pi by 2 cos square x plus sin square x dx, and I guess cos square x plus sin square x is 1, so it simply becomes 0 to pi by 2 1 dx, and 1 ka integral x 0 to pi by 2, so it becomes pi by 2, but it is 2i, so I will become pi by 4, isn't it? So it's a very simple and straightforward problem, but you can go for something like this, or you can go 1 plus cos 2x by 2, and in that manner also you can finish the problem. Correct? Then let's go for second one. Integral again 0 to pi by 2 square root of sin x plus square root of sin x plus square root of cos x dx. Correct? So I'm not going to solve, I'm just going to say hint. F of x is equals to f of a minus x. This will be able to solve your problem, because if you remember properly, then we did something like this in examples as well. Correct? 1 upon 1 plus square root of 10x, so 10 sin by cos, तो cos ऊपर गया था. Same way यहाँ पे sin दिया है, we can do this particular problem by that method also only. I guess example question number 3 is also same. 0 से pi by 2 sin raised to 3 by 2x divided by sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x dx. Again the same hint for question number 2 and question number 3. With this same hint you can again solve this problem. यहाँ पे भी वही होगा. Sin भले raised to 3 by 2, it doesn't matter. Sin pi by 2 minus x will become cos x. So it will become cos raised to 3 by 2x. This will be converted into cos. This will be converted into sin. So adding 1 and 2, you will get directly same things in numerator and denominator will get cancelled. We'll get 1. We'll integrate it and we'll just simply put the limit, divide by 2. If you remember the shortcut also I told you, okay, in this kind of a problem you can directly solve upper limit minus lower limit divided by 2. Correct? That is how you can finish this particular problem. Again question number 4 is also same. Integral 0 to pi by 2. See, these are the same questions, so I don't think कि मुझे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को unnecessarily weak बनाऊं. Correct? I guess you people can try this kind of questions. Again same thing है बेटा. ध्यान से देखो, cos raised to 5x. If you put x की जगह पे pi by 2 minus x, it will become sin. This will become cos. This will become sin. So denominator तो same ही हो जाएगा. Adding 1 and 2. cos raised to 5x plus sin raised to 5x, नीचे सेम कट होके 1, लिमिट पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2 है, b माइनस a बाई 2 वाला ही केस बनेगा. सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें भी कुछ हमें करने जैसा है. सिंपल. देन लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 5. आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मैं आपको हिंट्स दूंगा, है ना. हर एक प्रॉब्लम सॉल्व में आपको नहीं करके देने वाला, बिकॉज वी डिड ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्पल्स विच आई ट्राइड कि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना. जिन्हें ये डिफिकल्टी हो रहे हैं, दोज हु आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहले एग्जांपल्स वाला वीडियो देखें, तो ये प्रॉब्लम्स आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे. यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट. -5 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x plus 2 dx.
Now see, this problem can be again done by two ways. Why I am saying that? Because if you recall something, मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, करेक्ट. बट यहाँ पे आप लिमिट देख रहे हो -5 से 5 है ना, तो मॉड्यूलस फंक्शन है. सो लेट अस डू लाइक वी डिड इन वन ऑफ द एग्जांपल. कैसे देखा था? तो कि भाई कैन वी डू समथिंग लाइक दिस कि भाई x+2 है, तो यानी कि x+2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू -2. So this interval will be divided into two things, -5 से -2 modulus of x+2 dx and -2 से 5 modulus of x+2 dx. Correct. When you take the value from this interval -5 से -2, है ना, जैसे कि हम मॉड्यूलस ऑफ x कैसा लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x कैन बी रिटन एज +x and -x. सेम वे मॉड्यूलस ऑफ x+2 विल बी रिटन एज x+2 when x will be greater than equals to -2 and minus of x+2 when x is less than -2. So this interval lies between -5 and -2. So this one, as per that, the function will become minus of x+2 dx and here function will become x+2 dx. Isn't it? है ना. अब इससे आगे इंटीग्रल करने में आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई भी टाइप की डिफिकल्टी फील होगी. व्हाई? तो इट्स वेरी सिंपल टू इंटीग्रेट. -x की जगह पे x²/2 और -2x इंटीग्रल -5 से -2 अगेन x की जगह पे x²/2 + 2x -2 से 5. नाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड आल्सो थिंकिंग सर -2 यहाँ भी -2 ये अपर लिमिट के कट हो जाए. ऐसा नहीं होता है ना. We need to take care of those kind of things. So -2 का स्क्वायर 4, so 4/2 2 minus plus 2 2s are 4. ये अपर लिमिट हुई. माइनस लोअर लिमिट 5² 25, so -25/2 minus plus 10 प्लस यहाँ पे अपर लिमिट 5² 25/2 plus 5 2s are 10 minus lower limit 2² 4 4/2 2 minus 2 2s are 4. करेक्ट. सो लेट्स सी क्या आ रहा है. -2 + 4 minus plus 25/2 minus 10 plus 25/2 plus 10 minus 2 plus 4. तो सिर्फ ये 10 ही कट हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ है ना. ओनली 1 10, बाकी सब एज इट इज है. -2 + 4 + 2 + 2 + 2 4. करेक्ट. और 25/2 25/2 25 आएगा. सो 4 + 25 will give us 29. Are you getting? So this is how it is supposed to be solved. Am I clear? You can pause the video and note it down. Now let's go for question number 6. This is somewhat similar to the previous one, so I'm going to give you idea only. X minus 5 equals to 0, so x equals to 5. So you have to divide this integral from 2 to 5, correct, and 5 to 8. Now in this interval make sure which is positive which is negative as we did in the previous problem, and you can finish this problem by yourself. फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे in question number 7. It is given I equals to integral 0 to 1 x into 1 minus x raised to n. Now when you see something like this, you will be get confused कि अब ये होगा क्या यहाँ पे. So whenever you see something like this, ना always go for the property, है ना. कौन सी property? तो I will replace a minus x. So instead of x 1 minus x 1 minus 1 minus x raised to n dx. This will make a problem simple like this. यहाँ पे ओपन करोगे 1 1 कट और सिंपली बचेगा x raised to n dx. And now you can multiply x raised to n also, so x raised to n minus x raised to n plus 1 dx. And now the integral also become easy. Why? Because x raised to n का integral x raised to n plus 1 not n by 2 by n plus 1 minus x raised to n plus 2 divided by n plus 2 0 से 1. करेक्ट. सो पहले अपर लिमिट रखेंगे 1, सो 1 का पावर कुछ भी हो 1, so it will become 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2 minus lower limit x की वैल्यू 0, तो 0 is 0 minus 0, nothing left out of that.
इफ यू वांट यू कैन टेक एलसीएम एंड इफ यू वांट यू कैन कीप इट एज इट इज, बट लेट्स से कि एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या होता है n+2 माइनस n माइनस 1 divided by n+1 n+2 n get cancelled, so I got 1 upon n+1 into n+2. Correct? This is your answer. Are you getting me? So this is how we are supposed to solve this kind of questions. और ये try करना, don't leave it like this कि हाँ यहीं तक सर ने तो बताया था तो इतना ही होगा, ऐसा नहीं है. यहाँ से आपको आगे प्लस और माइनस एक्स के हिसाब से एडजस्ट करके सॉल्व करना है. करेक्ट? चलो लेट्स गो फॉर 8th वन. ओके, 8th इज अ गुड वन. लेट मी से दिस इज लिटिल बिट ऑफ इम्पोर्टेंट क्योंकि अगेन ब्रैकेट में है log 1 प्लस 10x dx. देखो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ना लॉग वाले प्रॉब्लम थोड़े से इंटरेस्टिंग रहेंगे, ऑल द लॉग प्रॉब्लम. सो मेक श्योर दैट यू डू दोस प्रॉब्लम इन अ लिटिल बिट गुड वे. सो अगेन यहाँ पे भी कुछ होगा तो नहीं हमसे, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, तो log 1 प्लस 10 π/4 माइनस x dx. अब यहाँ पे एक डिफिकल्टी ये है कि अगर π/2 माइनस एक्स होता तो कॉट में कर लेते, पाई माइनस एक्स होता तो 10x ही लिख लेते, बट हियर इट इज π/4 माइनस एक्स. सो दैट्स द थिंग वी आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. बट फॉर्मूला जो लगाएंगे वो पहली बार नहीं होगी. 1 प्लस 10a माइनस b 10 π/4 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 π/4 into 10x dx. And this will become a simple thing, log 1 plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x dx. And if you take LCM, correct, तो क्या होगा, 1 plus 10 plus 1 minus 10, 10 will get cut, 1 plus 1 2 upon 1 plus 10x dx. लेकिन अभी भी करे कैसे, ये तो 2 upon 1 plus 10x आ गया. चलो मान लिया यहाँ तक तो हमने अच्छे से किया, बट व्हाट शुड वी डू फर्दर सो दैट वी कैन हेल्प आवर प्रॉब्लम टू सॉल्व इन अ इजी वे, है ना. तो देखो एक तरीका है, हमेशा लॉग वाले प्रॉब्लम क्यों कहा इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज उनमें लॉग की प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखनी पड़ती है. सो वी नो वन ऑफ द रूल ऑफ लॉग कि अगर डिवाइड में होता है तो हम सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो log 2 dx माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx. मैंने माइनस में भी लिखा और इंटीग्रल भी सेपरेट कर दिया. क्यों, तो क्योंकि ये देखो आपका और कुछ नहीं बल्कि i है. सो दिस विल बिकम i इक्वल्स टू log 2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रल 0 to π/4 1 dx माइनस i. सो ये हो गया 2i log 2 इंटीग्रल होगा x, लिख लेते हैं, इतनी भी हड़बड़ी नहीं करेंगे, है ना. 1 का इंटीग्रल x 0 से π/4. सो i इक्वल्स टू log 2/2 और अपर लिमिट होगी π/4. सो π/8 log 2 इज द आंसर. π/8 log 2. Are you getting me? So this is how this kind of problems are interesting. मैंने कहा ना कि लॉग वाले प्रॉब्लम आएंगे ना हमेशा इंटरेस्टिंग रहेंगे, उसे थोड़ा सा केयरफुली और ध्यान से करना, अदरवाइज वो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल 0 to 2 x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x. अब देखो इसमें मैं हिंट देने वाला हूँ. वाई? बिकॉज दिस इज समवट सिमिलर टू द प्रॉब्लम ऑफ विच वी डिड टुडे, क्वेश्चन नंबर 7. इसमें भी ऐसा ही करेंगे. प्रॉपर्टी 0 to 2, इंस्टेड ऑफ x वी कैन राइट 2 minus x और 2 minus x. करेक्ट. सो इट विल बिकम 0 to 2 minus x और सिंपली बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ x dx. अब ये मल्टीप्लाई कर दो, योर प्रॉब्लम इज डन, है ना. मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन में कोई इतना टफ नहीं लगेगा. सो अब आराम से उसको इंटीग्रेट करके यू कैन रीच टू द सॉल्यूशन, है ना. अब इतने सिंपल सीधी स्टेप्स में आपको चैप्टर की लास्ट कंसेप्ट एक्सरसाइज में तो नहीं बताना प्रीफर करूंगा. करेक्ट. कंसेप्ट एक्सरसाइज दैट मीन स्टिल मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज आर लेफ्ट, बट कंसेप्ट वाइज वी आर डन, खत्म हो चुका है. अब बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की. सो मेक श्योर दैट यू पीपल फिनिश दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत अच्छा. अगेन देखो लॉग आया 0 से π/2
2 times log sin x minus log sin 2x. मैं इसे ब्रैकेट में रख देता हूं so that I can write dx. करेक्ट. अब देखो सिंपल सी बात है, मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि 2 log sin x है, ये sin 2x है, तो I can split this sin 2x. कैसे स्प्लिट करेंगे? तो log 2 sin x cos x dx. Now we know that कि इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2. करेक्ट. इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर टर्म, कैन वी से कि हम इसे log के एडिशन में लिख सकते हैं, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x. सो सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 2 log sin x minus log 2. Now actually it is plus, but because of this negative it will become minus log sin x minus log cos x and dx. And if you observe carefully, ध्यान से देखो, तो 2 log sin x and 1 log sin x will get cancelled and will give us log sin x minus log cos x minus log 2 dx, and this will be equation number 1. क्यों इक्वेशन नंबर 1 बोला? तो क्या आई नो इंटीग्रल 0 to 2, and if by property if I will go something like this, तो I can see sin x cos x both present here, और प्रॉपर्टी के हिसाब से this will become log sin pi by 2 minus x minus log cos pi by 2 minus x minus log 2 dx, and this will become integral 0 to pi by 2 log cos x log sin x minus log 2 dx, and let me call this equation number 2. So अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, तो आपका प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो चुका है, बिकॉज इफ यू एड इक्वेशन 1 and 2, अगर अब आप अपनी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे, देखो log sin x कैंसल, log cos x कैंसल, विल लेफ्ट विद दिस 2 ओनली. सो एडिंग 1 and 2, सो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड पे तो i प्लस i 2i हो जाएगा. लिमिट स्टिल सेम है, सो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, ये दोनों कट, ये दोनों कट, आई एम लेफ्ट विथ माइनस log 2 minus log 2 dx, and again I can take minus 2 times log 2 common, integral 0 to pi by 2 1 dx, लिमिट लगा दो minus 2 log 2, लिमिट यानी कि इंटीग्रेट करके 0 से pi by 2. करेक्ट. बेसिकली आप 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी सिंपली बिकम माइनस log 2, और ये आ जाएगा पाई बाई 2. सो योर आंसर इज माइनस पाई बाई 2 log 2. आर यू गेटिंग मी? दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. करेक्ट. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डू वी हैव? इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx. नाउ लुकिंग एट दिस इंटीग्रल, सबसे पहले मुझे दिख गया माइनस a to a. मीन्स आई विल चेक फर्स्ट वेदर दिस फंक्शन इज ऑड और इवन. करेक्ट. कैसे चेक करेंगे? तो कि साइन स्क्वायर एक्स में है ना, इफ दिस इज माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देन रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, सो साइन माइनस एक्स का स्क्वायर, this will become sin square x only. If you want you can understand minus sin x आएगा, स्क्वायर करोगे sin square x, that means f of minus x equals to f of x, therefore f is even function. even function होता है तो हमारे लिए इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? twice 0 to a f of x dx. अब 0 से a तो चलो ठीक है कर लिया, ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स dx. फिर फर्दर क्या करेंगे? तो दिस इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 1. क्या करो? 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स dx. दिस विल बिकम इंटीग्रल 0 टू 2 साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx. कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 1, कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 2. कैन यू प्रोसीड फर्दर? साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1, तो 1 का पाई बाई 2 रखोगे, पाई बाई 2 ही आएगा. हाँ, ऐड करोगे तो 2i भी होगा, तो 2 कट हो चुका होगा. करेक्ट. 1 का सिंपली पाई बाई 2, पाई बाई 2 विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. करेक्ट. अब आप ऐसा चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो, लाइक वी डिड इन द एग्जांपल्स के 1 माइनस cos 2x by 2, दैट विल गिव यू आल्सो द सेम आंसर. उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. करेक्ट. एवरीथिंग विल रिमेन सेम. सो आई एम लिविंग इट फ्रॉम फॉर यू पीपल फ्रॉम हियर. आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो. करेक्ट.
नाउ लेट मी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। जैसे कि आप देख रहे हो I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो देखो यहाँ पे भी वही छोटा सा प्रॉब्लम है कि ऊपर है ना x dx है और नीचे से हम कुछ सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएंगे जिससे हमारा प्रॉब्लम सिंपल हो जाए। तो व्हाट कैन वी डू? तो लेट्स से कि भाई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे। क्या होगी प्रॉपर्टी? तो क्या पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन साइन पाई माइनस एक्स। पाई माइनस यानी कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे, वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, सो दिस विल बिकम साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। दिस इज नथिंग बट i इटसेल्फ, है ना। तो ये हो गया 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई, और मैं पाई बाहर निकाल देता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स सॉल्व करने तो हमें आता है ना, कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या पाई 0 टू पाई, अगर नहीं कुछ पता तो कॉन्जुगेट ले लो, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स पाई 0 टू पाई, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे dx रह गया जो रहना नहीं चाहिए कभी भी, वरना आपको डिफिकल्टी फील कराएगा, है ना। डिफिकल्टी इन द सेंस कि आपके मार्क्स कट जाते हैं भाई, अगर आपने ध्यान से वो चीज पे नजर नहीं रखी होगी तो, है ना। ना सिंपली अगर मैं रिवर्स एलसीएम कर लूं, सो 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स एंड साइन अपॉन कॉस इज tan x, और एक कॉस बचेगा उसका sec x dx। तो ये भी सिंपल हो गया ना। देखो अब मैं i की वैल्यू लिख रहा हूं, सो आई कैन राइट पाई बाई 2। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x और sec x tan x का sec x, और इंटीग्रल की लिमिट है 0 से पाई। सीधे सीधे सा रख देना है, पाई बाई 2 tan पाई माइनस sec पाई माइनस tan 0 माइनस sec 0, इजंट इट। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे व्हाट इज tan पाई, तो क्या साइन पाई अपॉन कॉस पाई। साइन पाई तो 0 था, चलो 0। sec पाई माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, थोड़े से ब्रैकेट्स में थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। 0 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस tan 0 अगेन 0 माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 2, तो पाई बाई 2 इंटू 2 2 कट होके आंसर आएगा पाई। आर यू गेटिंग? सो दिस, इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो आई एम गिविंग यू द आइडिया एज वेल एज द सॉल्यूशन ऑफ फ्यू क्वेश्चंस, करेक्ट। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन। I इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन रेस टू 7x dx। यू कैन अगेन ऑब्जर्व हियर समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे आपका लिमिट माइनस a से a है, एंड व्हेन यू हैव अ लिमिट समथिंग लाइक दिस ना, तो वापस क्या चेक करेंगे, वेदर द फंक्शन इज ऑड और इवन। हमने साइन स्क्वायर के लिए देखा, तो जब साइन स्क्वायर के लिए देखा तो स्क्वायर था इसलिए वो पॉजिटिव आ गया, करना वही है, बट अब पावर देखो ऑड है, दैट मीन्स माइनस साइन एक्स का पावर 7, दैट मीन्स इट बिकम्स माइनस साइन एक्स, तो फंक्शन आ जाएगा ऑड, और वेन एवर द फंक्शन इज ऑड आंसर विल बी 0। वी डिड अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप आराम से ट्राई करोगे, हो जाएगा। आपको करना है ना, करना है इन द सेंस यू आर सपोज टू फाइंड फर्स्ट f of x इक्वल्स टू माइनस f of x, देन टेल अस दैट के फंक्शन ऑड है, और ऑड फंक्शन होने की वजह से हम इसको लिख देंगे 0। डायरेक्टली 0 मत लिख देना, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलेंगे, करेक्ट। लेट्स से 14 0 से 2 पाई cos रेस टू 5x dx। अब ये कैसे करेंगे? देखो ये प्रॉब्लम एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान रख के करने वाला है। सबसे पहले ये सोचो कि अगर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी ये वाली cos रेस टू 5 2 पाई माइनस एक्स dx, तो 2 पाई माइनस यानी कि कहीं भी करो, 2 पाई माइनस करो या 2 पाई प्लस करो, आप डेफिनेटली फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरोगे, एंड दैट्स वेयर cos इज पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई वापस cos रेस टू 5x। अरे ये कौन सा लॉजिक है? तो फिर सम कैसे करेंगे, है कि नहीं? तो देखो मैं इसको कुछ इस तरह से बताता हूं कि अगर हमने 2 पाई से रिप्लेस किया, करेक्ट, cos 2 पाई माइनस x, तो इट बिकम्स cos x ओनली,
तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रल 0 टू a f of x dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a f of x dx, करेक्ट, जिससे मेरे i बन जाएगा 0 से पाई cos रेस टू 5x dx, लेकिन ट्वाइस। अब पाई माइनस एक्स के लिए देखो तो पाई माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा ऑड। किसके लिए बात कर रहे हैं, नाउ cos पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाता है माइनस cos एक्स, तो पावर में रखोगे 5 तब भी ये माइनस ही आएगा, करेक्ट। दैट मीन्स i इक्वल्स टू, ये ट्वाइस तो एज इट इज रखेंगे, करेक्ट। ये अब आपका देखो इंटीग्रल जो है ना वो ऑड में जा रहा है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 इंटू 0, सो दैट्स हाउ आई कैन से इसका इंटीग्रल का आंसर भी क्या आएगा 0, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान देना है कि जब आपने यहाँ पे 2a माइनस एक्स किया यानी कि पाई माइनस एक्स किया, तो आई एम गेटिंग नेगेटिव, यानी कि f ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस f ऑफ एक्स व्हेन द फंक्शन बिकम्स ऑड काइंड, करेक्ट। आपका लास्ट सेकंड प्रॉपर्टी था ये, उसके हिसाब से दिस विल बिकम 0। कुछ ज्यादा नहीं है, एकदम सिंपल इजी प्रॉब्लम है, डोंट वरी। आप लोग प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको प्रॉपर्टीज थोड़ी ध्यान में आएगी और वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये इस तरह से हो रहा है ना। यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस अ लिटिल बिट ऑफ क्या कहते हैं आपकी प्रॉपर्टीज को, करेक्ट। नेक्स्ट इज sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x cos x dx, और इंटीग्रल है 0 से पाई बाय 2। क्या है, 0 से पाई बाय 2। तो देखो कभी भी हमें डिफिकल्टी लगे कि अब क्या करें, किस तरह से करें, कुछ फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे, तो आप कुछ सोच सकते हो कि प्रॉपर्टी सोच। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा फिर भी यूनिक है, आप कुछ ऐसे भी जा सकते हो कि यहाँ पे 1 की जगह पे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, करेक्ट। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x वाला एक टर्म रहेगा, बट यहाँ पे ध्यान ये रखना पड़ता है कि डिवाइड में 2 आएगा, है ना। सो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट क्रिएट होता है। तो प्रॉपर्टी को थोड़ी सी और ध्यान में रख के कैन वी राइट लाइक दिस, sin पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस cos पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। अब देखो sin पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी कि आप कौन से क्वाड्रेंट में फॉल होगे, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin कन्वर्ट होके cos, cos कन्वर्ट होके sin, डिवाइड में 1 प्लस sin का cos हो गया और cos का sin हो गया। सो डिनोमिनेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2। अच्छा 1 एंड 2 ऐड करने से क्या चेंजेस आ रहे हैं वो थोड़ा देखते हैं। 2i इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, न्यूमरेटर में है sin x माइनस cos x और यहाँ पे है cos x माइनस sin x। डिनोमिनेटर में तो कोई फर्क नहीं है, 1 प्लस sin x और cos x है और ये dx। cos कट sin, अरे न्यूमरेटर तो पूरा ही कट हो गया और 0 का इंटीग्रल तो 0 आएगा, यानी कि i भी 0 है। अब 0/2 करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है, विल इट चेंज एनीथिंग, नॉट एट ऑल, करेक्ट। आर यू गेटिंग द आइडिया। देखो हम किस तरह से प्रॉपर्टी का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। सो मेक श्योर दैट यू डू ट्राई दिस वे, है ना, अच्छे से समझ के करना। राइट नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now let's go for question number 16 and mark this question as one of the most important question of this exercise, integral 0 to pi log 1 plus cos x, correct। I said one of the most important question, बहुत important question है ये। चलो शुरू कैसे करेंगे। If I have log 1 plus cos x dx तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो हम एक प्रॉपर्टी जो है वो बार बार यूज करते रहते। x की जगह पे रख देंगे cos पाई माइनस x dx, एंड इफ यू से cos पाई माइनस x dx तो इट बिकम्स 1 माइनस cos x dx। लेट मी से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, है ना। तो अगेन यहाँ पे भी एडिंग 1 एंड 2 देखते हैं क्या होता है, एडिंग 1 एंड 2, सो i प्लस i 2i इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x dx।
और अगर आपके दो लॉग के टर्म एडिशन में हो तो उनके अंदर के टर्म का प्रोडक्ट होता है, तो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और साइन स्क्वायर से 2 आगे ले लेते हैं तो 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये 2i है। तो i मेरे पास कितना बचा, सिंपल सा इंटीग्रल 0 टू पाई, ओ साइन कहां से अकेले आ गया, वो तो लॉग के साथ है ना, सो इट विल बी लॉग साइन एक्स डी एक्स। नाउ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन यू मे बी थिंकिंग, अरे ये तो सिमिलर प्रॉब्लम है लाइक वी डिड इन दी एग्जांपल्स। नो, लॉग साइन एक्स फंक्शन सेम दिख रहा है, लेकिन अगर उसकी लिमिट में ध्यान दोगे तो इट वाज 0 टू पाई बाय 2, नॉट 0 से पाई। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें थोड़ा और ध्यान रखना है। तो अगर मैं ऐसा चेक करूं कि साइन पाई माइनस एक्स, तो क्या आएगा, तो कि वो तो साइन एक्स ही आएगा, यानी कि फंक्शन इवन रहा, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो वो ऑड इवन वाले में, इवन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, माइनस ए टू ए, उसके ऊपर वाले प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, करेक्ट, जिससे ये बन जाएगा ट्वाइस 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब एक्चुअल में आपका वो एग्जाम्पल वाला इंटीग्रल जनरेट हो गया। क्या करेंगे, पहले तो इसको लेट मी से इक्वेशन नंबर 3, फिर रिप्लेस करेंगे x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 0 टू पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। और अब बोलेंगे एडिंग 3 एंड 4 यू विल गेट 2i इक्वल्स टू 2 कॉमन 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। तो ये 2 वापस कट, तो i हो गया इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो भी आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे मैं एक और तरीका बताता हूँ, यू कैन गो समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, log 2 प्लस में और log 2 माइनस में। वाई आई टोल्ड यू समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इस तरह से आप देखोगे तो प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, करेक्ट। सो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस log 2 dx, कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां से आपको पता है क्या करना है, सो आई विल गिव यू जस्ट सिंपल 1 स्टेप का आइडिया मैं दे रहा हूं यहाँ पे, है ना, उसके बाद आप लोग खत्म करोगे इस प्रॉब्लम को। क्या, तो कि ये बन जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx। ये कांस्टेंट है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसे आपको सॉल्व करना है लाइक वी डिड इन दी एग्जांपल। कैसे, लेट 2x इक्वल्स टू t इन फर्स्ट इंटीग्रेंड, करेक्ट। अब जैसे ही आप लोग लेट करते हो आपको dx इक्वल्स टू dt तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लिमिट चेंज होगी। व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो t भी 0, और व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 2 तो t हो जाएगा पाई, करेक्ट। इस तरह से आपकी लिमिट चेंज होगी, और लिमिट चेंज होने की वजह से आपका पूरा प्रॉब्लम जाएगा t में, तो क्या हो जाएगा i इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन t dt माइनस लॉग 2 कांस्टेंट इंटीग्रल x 0 से पाई बाय 2। मैंने हिंट बोला था, हिंट से हम आगे बढ़ चुके हैं एक्चुअली, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सम खत्म करने के उस पे आ चुके हैं। नाउ 0 से पाई लॉग साइन टी dt। अब ये तो वापस से लॉग में इसमें रखोगे तो ये ट्वाइस होगा, क्योंकि देखो वो तो प्रॉपर्टी तो लगनी है ना, प्रॉपर्टी ऐसा है नहीं कि वो वैलिड नहीं होगी, करेक्ट। सो यहाँ पे 0 से पाई में हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, सिंपल। और फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब चाहे तो इसी को आई रख दो, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, बट होता क्या पता है, अगर इसे आई रख दोगे ना तो लोचे हो जाएंगे। क्या लोचे होगा पता है, कि आपका यहाँ पे आई ही कट हो जाएगा। अब आई कट कैसे कर सकते हैं, इजंट इट? सो आई कट ना हो इसीलिए हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे
कि ये 0 से पाई, एक मिनट है, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे dt/2 है तो ये 1/2 आएगा, 1/2. नाउ वी कैन पुट दिस एज आई डोंट माइंड, माइनस log 2 इंटू π/2. इधर ले लोगे तो हाफ कट हो जाएगा, i/2 होगा तो 2 टाइम्स माइनस log 2 इंटू π/2 एंड 2 कट, तो आई विल गेट माइनस पाई log 2 एज माई आंसर. तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि आई कट ना हो जाए. यहाँ पे मेरी छोटी सी मिस्टेक थी कि dx होगा तो dt/2 होगा, 2 कांस्टेंट है ना, तो उसकी वजह से ये 1/2 आ जाएगा. देन यू कैन सिंपली पुट दिस i, तो हाफ इधर जाएगा तो हाफ बचेगा, 2 ऊपर ले लिया, 2 π/2 के साथ कट, तो आई गॉट माइनस पाई log 2. व्हाई आई सेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो आपने अगर थोड़ा नोटिस किया ना तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था. वी डिड फिनिश दिस पार्ट, we did finish this one, and then I rubbed this over here and I did this one. Are you getting the length of the problem? ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए 4 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसको आप जितना चाहो उतना इंपॉर्टेंस में लिख दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें जनरली एग्जाम में आ सकते हैं. Am I clear? You can pause the video and note it down. Now I directly went for question number 19, क्योंकि 17 and 18 you people can try. सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है जो हमने एक्सरसाइज में आगे आपको ट्राई करने के लिए कहे. नाउ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन ना यू विल फील लाइक अरे ये क्या है. तो इंटीग्रल 0 से a f of x dx इक्वल्स टू हमें लाना है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a f of x dx. अगर f और g कुछ इस तरह से डिफाइन होते हैं तो सो डेफिनेटली शो दैट है, यानी कि स्टार्ट तो यहीं से करेंगे 0 टू a f of x g of x dx. करेक्ट. अब कुछ ज्यादा आइडिया नहीं आता है तो हम प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि हमें ये दिख रहा है ऐसा कुछ. तो इफ आई अप्लाई प्रॉपर्टी तो 0 टू a इट बिकम्स f of x माइनस a इंटू जी ऑफ x माइनस a dx. करेक्ट. इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 भी बोल देता हूँ. और आई नो दैट f of a माइनस x इज इक्वल्स टू f of x, तो ये हो गया f of x इंटू जी ऑफ x माइनस a dx. इक्वेशन नंबर 2, रीजन f of x इज इक्वल्स टू f of a माइनस x. अब ऐड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को. क्यों हमने एडिंग का सोचा, तो कि देखो दोनों में f of x तो कॉमन है, तो g of x प्लस g of x माइनस a का कुछ बन जाएगा हमसे, तो दोनों को ऐड करेंगे. और लेट मी से दिस इज i. करेक्ट. तो i प्लस i 2i इंटीग्रल 0 से a f of x इंटू जी ऑफ x प्लस f of x इंटू जी ऑफ x माइनस a और होल dx. अब जब आप ऐसा देख रहे हो तो इसमें क्या करोगे, तो f of x कॉमन निकाल लोगे, आपको मिलेगा g of x प्लस g of x माइनस a और dx. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g of x प्लस g of a माइनस x? 4. सिंपल सी बात है ना. इसका मतलब 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a f of x इंटू 4 dx. 4 कॉमन निकालो तो ट्वाइस बचेगा 0 से a f of x dx. यही हमें शो करना था कि आंसर ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू a f of x dx आए. करेक्ट. बस सिंपल सा इसी तरह के प्रॉब्लम आपको ध्यान रखने. दिस इज काइंड ऑफ यूनिक वन, क्योंकि देखो इसमें आपको इक्वेशंस नहीं दी है या कुछ उस तरह से नहीं दिया हुआ है जैसे हमने पिछले 15-17 क्वेश्चंस में देखा. करेक्ट. सो समथिंग यूनिक वी हैव, बट ऐसे क्वेश्चंस तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपके पेपर में कुछ अजीब सा आपको पूछना हो तब, है ना. अदरवाइज 16th वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी सॉल्व. रहे आपके 2 MCQ. अगर आपने एक्सरसाइज में प्रॉपर्ली ध्यान दिया होगा तो 2 MCQ आपसे डेफिनेटली हो जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई आई कैन से आवर एक्सरसाइज 7.11 ends. करेक्ट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.